Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. So today we'll be taking work, power and energy. सर आज 740 की रखेंगे ना, 740 इंग्लिश होती है. हाँ 740 तक खत्म कर देंगे. Now here this chapter has large weightage in your examination. Work, power and energy. Work, power and energy. Work when force is applied on a body and there is displacement in the direction of force, then work is said to be done. Excuse me, sir. Sir, your mic is muted. Mic muted. Yes. When force is applied on a body, and there is displacement in the direction of force, then work is said to be done. If you apply the force on the body and there is displacement in the direction of force, then only work will be done. Next line. Work done by constant force is equal to dot product of force and displacement. ये जो वर्क डन है that is dot product of F and S, because this work is a scalar quantity and force and displacement are vector. So W will be equal to Fs cos theta. A dot B is AB cos theta. Now this is the body, and on this body a force F is applied at an angle theta, and body moves to this place. So displacement is in this direction. Displacement is along the surface. So resolve this force. So this component of force, that is F cos theta, will be taken into account. F cos theta, that is in the direction of displacement. F cos theta is in the direction of displacement. So F cos theta into S. This is the work done. So whenever you have to find work done by constant force, you will be applying Fs cos theta. Theta is angle between force and displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल होगा. SI यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, एंड 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल. So joule is the SI unit of work.
Now, if you have to define 1 joule, then force has to be 1 Newton and displacement has to be 1 meter, and theta should be 0 because cos 0 will be 1. So write down, if a constant force of 1 Newton, if a constant force of 1 Newton applied on a body produces a displacement of 1 meter in the direction of force, then work done will be 1 joule. 1 Newton का फोर्स अप्लाई करो and 1 meter displacement is produced, and that in the direction of force, then work done will be 1 joule. CGS unit will be फोर्स की डाइन और डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, एंड 1 डाइन सेंटीमीटर इज नोन एज 1 अर्ग. तो अर्ग इज द सीजीएस यूनिट. अर्ग इज सीजीएस यूनिट. Now this you will define as, if a force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter in the direction of force, then work done will be 1 arc. यहां से बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हो, फोर्स ऑफ 1 डाइन, force of 1 dyne produces displacement of 1 centimeter, work done will be 1 arc. Relation between joule and arc, or relation between SI and CGS unit of work. सर क्या करा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. बस वर्क बताया है. वर्क इज Fs cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा. फिर उसकी यूनिट जो 10th में तुमने पढ़ी है, SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्क. इनके बीच में रिलेशन जूल और अर्क के लिए, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है Fs cos थीटा, या Fs ले लो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वर्क डन 1 जूल होगा जब फोर्स 1 न्यूटन का लगे और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो. 1 जूल वर्क तब होगा जब फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 1 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो वो 1 मीटर का हो. अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो. 1 न्यूटन होता है 10 to the power 5 डाइन, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 10 to the power 7, 5 और 2 7 डाइन सेंटीमीटर. और डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं. डाइन सेंटीमीटर इज नोन एज अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. तो कभी कन्वर्जन अगर चाहिए तो ये इसका कन्वर्जन हो गया. 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग.
then coming back to the same formula, W जो है Fs cos theta, this is the basic formula for work done. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है. अभी फोर्स कांस्टेंट चल रहा है, अभी वेरिएबल नहीं लिया है. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, समवेयर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ये है सिचुएशन. ये बॉडी है, इधर को फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S. तो W इज Fs, सेम डायरेक्शन है तो cos 0, और cos 0 1 होता है तो वर्क डन स्ट्रेट अवे F इंटू S से फाइंड कर दोगे. कहीं पर अगर दिखे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो F इंटू S लगा दोगे बस, क्योंकि थीटा जो है 0 होगा एंड cos 0 इज 1. और इस केस में वर्क डन जो आएगा दैट विल बी कमिंग पॉजिटिव. यू विल हैव पॉजिटिव वर्क डन. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन विल बी कमिंग पॉजिटिव. सेकेंड पॉइंट में, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, कहीं पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, ये फोर्स हो और ये डिस्प्लेसमेंट हो, तो थीटा 90 Fs cos 90 और cos 90 जीरो होने से वर्क डन जीरो हो गया. कहीं भी तुम्हें ये दिखे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन जो है वो जीरो होगा ऑलवेज. एग्जाम्पल लेते हैं इस केस के. अ पुली कैरिंग लोड ओवर हिज हेड, अ पुली कैरिंग लोड ओवर हिज हेड एंड मूविंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म is not doing any work. This pulley carrying the load over his head, तो weight जो है mg, that is basically the force, और ये पुली यहां पे आ गया लोड लेके, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा. सर यस, तो ये टॉपिक मुझे और प्रिया को करा चुके हैं ना? नहीं कराया नहीं है, अभी कहाँ कराया, ये 10th में पढ़ा होगा. हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वर्क. हाँ, वो थोड़ा सा बस वैसे ही पढ़ाया था कल. आज पूरा डिटेल में ले रहे हैं ना ये. नहीं, से पहले जब कोई ज्वाइन नहीं किया था, नहीं करा दिया था. वो डायमेंशन में निकलवाया होगा वैल्यूज, ये नहीं कराया होगा. कुछ डायमेंशन में आया होगा तो मैंने बता दिया होगा कुछ इसका डिस्क्रिप्शन. देन सेकेंड एग्जाम्पल, मास टाइड विद अ स्ट्रिंग
when rotated in a circle, mass tied with a string when rotated in a circle, then work done by tension will be zero. Work done by tension will be zero because tension and displacement are perpendicular. अभी सर्कुलर मोशन में ये मास टाइड विद अ स्ट्रिंग रोटेटेड इन अ सर्किल, वहां पे तुमने ये देखा था कि टेंशन वाज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। अभी अब जब वर्क की बात करोगे तो टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग होगा, फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग है, और इसकी वेलोसिटी इधर को होती है, जिधर वेलोसिटी उधर उसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है और टेंजेंट अलोंग द रेडियस है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो थीटा फिर से 90 होगा यहां, और टेंशन फोर्स ने कोई वर्क नहीं करेगा। तो व्हेन मास टाइड विद अ स्ट्रिंग रोटेटेड इन अ सर्किल, वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। चाहे वो कहे कि मास यहां से यहां आया है फिर भी वर्क डन जीरो होगा, यहां से यहां आया है तो भी वर्क डन जीरो होगा, पूरा राउंड ले ले तो भी वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि टेंशन अलोंग द रेडियस है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेलोसिटी दैट इज अलोंग द टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो हर स्टेप पे वर्क डन जीरो होगा। कितना भी तुम इसको घुमाते रहो सर्किल में, टेंशन विल नॉट डू एनी वर्क। इसी तरह जहां भी सर्किल इन्वॉल्व होगा वहां पे वर्क डन जीरो हो जाएगा बाय द सेंटीपीटल फोर्स जो भी है। सेंटीपीटल फोर्स यहां पे टेंशन था। इसी तरह अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि अलोंग द सर्किल मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटी फोर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो एक और एग्जाम्पल लिख लो, कुछ भी ले सकते हो। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। सो इन ऑल दीज केसेस वर्क डन इज जीरो। कहीं भी तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो वर्क डन जो है जीरो होगा। देन इसी में अब थर्ड पॉइंट आते हैं। पहले हमने देखा था पहले पॉइंट में थीटा जीरो था, दूसरे में थीटा 90 हो गया। थर्ड पॉइंट, द वर्क डन विल बी नेगेटिव if angle between force and displacement is obtuse। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो ग्रेटर देन 90 तो वर्क डन जो है वो निगेटिव आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 होगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर थीटा 90 से ज्यादा होता है तो cos थीटा नेगेटिव होगा। So work done can be positive, work done can be negative, as well as work done can be zero, different situations में। Then side heading, graph between force and displacement
व्हेन फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट, बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया तो ये फोर्स एंड हियर डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, because whatever be the displacement, force has to be constant and the area enclosed by the graph will give the work done. ये जो एरिया enclosed by the graph है, that will be giving you the work done. तो एरिया enclosed by graph will give work. तो अगर कहीं पर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो उसके ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो भी एरिया आएगा वो एरिया वर्क डन बताएगा. जैसे यहां पे ये रेक्टेंगल आ रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया ले लोगे, कहीं पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर का एरिया, कहीं पे ट्राइंगल का आए तो ट्राइंगल का एरिया ले लोगे. इन दिस वे यू विल बी फाइंडिंग द वर्क डन. देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अब जो फोर्स अप्लाइड है वो कांस्टेंट